Good afternoon, all of you. Today we have discussed about the topic of air pollutions. So, air pollutions it can be defined as addition of any contaminant to the air which causes harm to the health of living organism. Contamination of air which causes harm to the health of living organism, it is called as the air pollution. Air pollutions, it is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air. फिजिकल, भौतिक, रासायनिक एंड बायोलॉजिकल, जैविक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, इसमें अनडिजायरेबल चेंज, इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मीन्स रासायनिक एंड बायोलॉजिकल मीन्स जैविक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. एयर में क्या होगा? फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली चेंज in the air, undesirable change in the air, it is called as the air pollutions. Air pollutions. तो air pollutants, हवा प्रदूषण के बारे में मैंने बताया कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल characteristics of air, undesirable change in the air, it is called as the air pollutions. It is called as the air pollutions. So air pollution is the introductions of chemicals, particulates, matter or biological materials that cause harm or discomfort to humans or other living organism or cause damage to the natural environment or built environment into the atmosphere. The atmosphere is a complex, dynamic, natural gaseous system that is essential to support life on planet Earth. Stratospheric ozone depletion due to air pollutions has long been recognized as a threat to human health as well as to the earth ecosystems. Earth ecosystems. Air air pollutants. Air pollutants. एयर पोल्यूटेंट्स मीन्स हवा प्रदूषके. तो हवा प्रदूषके कौन कौन सी है? दे आर द सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द एयर. सम ऑफ द कॉमन पोल्यूटेंट्स आर. पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषके कौन कौन सी है, काय की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है? तो पोल्यूटेंट्स डस्ट, सूट, ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मीन्स CFC. CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. कहाँ से निकलता है ये? AC एंड
रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, फ्रिज से निकलता है ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन लीड कंपाउंड्स, एस्बेस्टॉस, डस्ट, सीमेंट, सीमेंट डस्ट, पोलन्स एंड रेडियो रेज रेडियो एक्टिव रेज, ये पोल्यूटेंट्स है। देन सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशंस, कौन कौन से सोर्सेस है एयर पोल्यूशंस? अभी पॉल्यूटेंट्स, इसके पहले अपन ने देखे पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स मैंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड्स है ये भी एक पॉल्यूटेंट्स है। स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड इज केमिकल कंपाउंड्स विद द फार्मूला SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय volcanics and in various industrial processes, since coal and petroleum often contains sulfur compounds. Their combustion generates sulfur dioxide. Further oxidation of sulfur dioxide, usually in the presence of catalyst, forms H2SO4 and thus acid rain। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एक एसिड रेन फॉर्म होगा। This is one of the cause for concern over the environmental impact of the use of these fuels as a power sources. Nitrogen oxides, specially nitrogen oxide, are emitted from the high temperature combustions and are also produced naturally during thunderstorms by electrical discharge। कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका फार्मूला है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज अ कलरलेस, odorless, non irritating but very poisonous gas। very poisonous gas, it is a product combustion of fuels such as natural gas, coal or wood। vehicular exhaust is major source of carbon monoxide। जो भी व्हीकल है उससे एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और वेरी पॉइजनस गैस CO। देन कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अ कलरलेस, odorless, नॉन टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैस, also associated with ocean acidifications, emitted from sources such as combustion, cement production and respiration। अपने रेस्पिरेशन से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। इट इज अदरवाइज रिसाइकल इन द एटमॉस्फेयर इन द कार्बन साइकिल्स, इन द कार्बन साइकिल्स। ये भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड्स अफेक्ट करता है। देन पार्टिकुलेट्स मैटर्स, अमोनिया, अमोनिया एमिटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। अमोनिया का फार्मूला है NH3। अमोनिया इज कंपोज्ड विद द फार्मूला NH3। इट इज नॉर्मली encountered as a gas with characteristic pungent smell। पंजेंट, जैसे प्याज से जो अमोनिया निकलता है, प्याज से आंसू आते हैं, तो ये पंजेंट स्मेल है, उग्रवास जिसको बोला जाता है। अमोनिया कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बाय सर्विंग एज अ precursor to the foodstuffs and fertilizers।
Then radioactive pollutants produced by nuclear explosion, nuclear events, or explosive and natural processes such as the radioactive decay of radons, radioactive decay of radons. Then next sources है human activities. कौन से sources है? Human activities. Air pollution by natural and man-made sources, air pollution by human activities. तो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से भी ये एयर पॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है. तो एयर पॉल्यूशंस क्लासिफाई प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से? एश, salt particles, pollen and spores, smoke, wind blown dust. And secondary pollutants, smoke means sunlight and nitrogen oxides, acid rain, pollen and spores, smoke and wind blown dust. सेकेंडरी जो प्रोडक्ट जो जब भी मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड्स ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है. द सल्फर डाइऑक्साइड्स रेन वाटर में मिक्स होता है, तो मिक्स होके एक क्या फॉर्म होता है? एसिड रेन. और एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है. मतलब सेकेंडरी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स उसमें क्या होता है? फॉर्म होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. तो ह्यूमन एक्टिविटीज, द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, नेचुरल सोर्सेस एंड मैन मेड सोर्सेस. नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से? दे आर डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर, जंगल आग एक नेचुरल सोर्सेस है एयर पोल्यूशंस का. एज फ्रॉम स्मोकिंग, वोल्केनिक्स, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड पोलन ग्रेन्स फ्लोटिंग इन एयर, ये नेचुरल सोर्सेस हो गए. देन मैन-मेड सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशंस, दे आर पॉपुलेशन explosion, deforestations, urbanizations and industrializations whose effects can be explained as follows. Industrialization man-made air pollution से ये भी एक फैक्टर्स अफेक्ट करता है एयर पॉल्यूशन के ऊपर. नहीं, देन सेकेंडरी pollutants and primary pollutants, burning of fuel like wood, cow dung, cakes, coal and kerosene in homes pollute the air. Cow dungs, wood, coke, coal and kerosenes ये भी एक सोर्सेस है. देन एग्जॉस्ट गैसेस emitted by motor vehicles which pollute the air are the major sources of the air pollution in big cities. मोटर व्हीकल से जो भी गैसेस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक फैक्टर्स सोर्सेस है क्या का? एयर पोल्यूशन का. Industries pollutes air by releasing various types of pollutants such as sulfur dioxide, carbon and nitrogen oxide, chlorine, asbestos, dust and cement dust. Thermal
power plants pollute air by emitting sulfur dioxide and fly ash. थर्मल पावर प्लांट से जो भी गैस निकलता है वो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड फ्लाई ऐश. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स pollute air by releasing radioactive rays. Then use of fertilizers and pesticides in agriculture polluted the air. Fertilizers and pesticides अपन जो यूज करते उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है. Mining activities releases particulates matter into the air and pollute it. Mining activities, the discriminating cutting of trees and clearing of forest increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere and thereby pollute it. Cutting of trees and clearing of forest increase the amount of carbon dioxide. जैसे जैसे फॉरेस्ट की कटिंग होती है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है, और जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे क्या करेगा? एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा. एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. यूजेस ऑफ CFCF, कार्बन फ्लोरो CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन्स इन. इसके पहले मैंने बताया, सॉरी, CFC का लॉन्ग फॉर्म है क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स. इसमें करेक्शन कर लो कि CFC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर्स, फायर एंड एरोसोल स्पेयर्स पोल्यूट एयर बाय डिप्लेटिंग द ओजोन लेयर. ये CFC जो है क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, ये जब भी मैंने बताया AC एंड रेफ्रिजरेटर से ये CFC गैस निकलता है, इसके वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है. देन स्मोकिंग पोल्यूट्स एयर बाय एमिटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटिन्स. देन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, यहाँ पे लिखे हुए हैं. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्रिएटेड बाय नेचर्स. सोर्सेस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, अभी जो मैंने बताया. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, एटमॉस्फेरिक H2SO4 फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इसके पहले मैंने बताया कि जो भी सल्फर डाइऑक्साइड जो भी गैस निकलता है वो गैसेस रेन वाटर में मिक्स होके एक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है. देन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, एसिड रेन, अभी जो मैंने बताया. एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर्स. मॉइस्चर ऑफ वाटर मतलब रेन वाटर्स प्लस सल्फर डाइऑक्साइड्स. देन फोटोकेमिकल स्मोक, इट इज हार्मफुल मिक्सचर फॉर्म्ड बाय गैसेस ऑफ नाइट्रोजन and particulated matter due to the photochemical reaction under influences of strong sunlight. Ozone contributes majorly to photochemical smoke. Major air pollutants, डबल रिपीट कर रहा हूँ. मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से? कार्बन कंपाउंड्स. Carbon dioxide is released by complete combustion of fossil fuels like diesel, petrols, and carbon monoxide is a very toxic gas is released by automobile exhaust. Sulfur compounds through the thermal power plants using coal and from the oil.
refineries, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, H2S, H2SO4, sulfuric acid are released. Then nitrogen oxides, these oxide like nitrous oxide, nitrogen oxides, HNO3 nitric acid are released by automobiles, power plants and industries. Then ozone, due to cooling industries, the CFC is released, which has affects the O3 in the atmosphere. ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन का फार्मूला है O3, ये ओजोन लेयर के ऊपर अफेक्ट करता है. देन फ्लोराइड्स, they are produced by the industrial and insecticide spray. इंसेक्टिसाइड कीटकनाशक अपन जो स्प्रे करते हैं उससे फ्लोराइड्स बाहर निकलता है, उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है. देन हाइड्रोकार्बन्स, they are released by the automobiles. Benzene, benzopyrene, etc. Metals, the metals such as lead, nickel, tin, etc. Beryllium, titanium are present into form of solid particles produced by metallurgical process. Photochemical matter, the products such as PAN, PBN are the photochemical smoke produced by the automobiles. Next type, particulate matters. Suspended particulate matters is released, मतलब suspended particles is released into the air by the stone crushing industries and dust and the ash from the thermal power plants. Biological particulates, they are mainly the bacterial cell, fungal spores and pollens. ये हो गया sources of air pollution, primary sources and secondary sources, primary sources and secondary sources. Then next अपन देखते इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस. तो एयर पॉल्यूशन के वजह से कौन कौन से इफेक्ट होते वो अपन देख लेते. कौन कौन से इफेक्ट होते एयर पॉल्यूशन के वजह से. तो फर्स्ट इफेक्ट से एयर पॉल्यूशंस अफेक्ट्स लिविंग थिंग्स, effect on non-living things, effect on non-living things.